Good morning, students. Fundamental of Nursing, 7th chapter, Nursing Diagnosis. Nursing Diagnosis is the second step of nursing process. हमने जो नर्सिंग प्रोसेस सीखा है उसमें का सेकेंड स्टेप कौन सा है? नर्सिंग डायग्नोसिस. ओके, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? नर्सिंग असेसमेंट, जो कि हो गया है प्रीवियस लेक्चर में. नाउ द नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स or diagnosis is the second phase of nursing process. It is often referred to analyze as well as a problem identification or the nursing diagnosis. Okay, it is the problem identification. Nursing diagnosis means what? Problem identification. हम जो पेशेंट का प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करने वाले हैं. ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस में nursing diagnosis is the second step of nursing process followed by a nursing assessment. नर्सिंग असेसमेंट के बाद वाला चैप्टर. ओके, मतलब बाद वाला स्टेप. इट इन दिस फेज द एनालिसिस ऑफ कलेक्शन डाटा is done to identify the nursing diagnosis and the problem that will be the basis of nursing care. It will be a basis on nursing care. Okay, then before the proceeding of nursing diagnosis, let us discuss whether the problem and the diagnosis is same. Answer yes or no. It is very important to make the distinctions in order to define the diagnosis skill in nursing. Diagnosis करने को आना चाहिए हम लोगों को. जैसे जैसे आप रोज केयर देते जाएंगे, अलग अलग पेशेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, अलग अलग केस हैंडल करेंगे, तो आपको समझ में आता है कौन सा डायग्नोसिस है पेशेंट. ओके, द प्रॉब्लम इज अ डेविएशन और द discrepancy of between what should be or could be and what is actually occurring. It does not give any clues. For example, ankle edema. Okay, प्रॉब्लम मीन्स व्हाट? इट इज़ अ डेविएशन. मतलब पेशेंट को क्या अराइज हो रहा है, जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड अपना डायग्नोसिस होता है. ओके, डायग्नोसिस इज द समरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉज और बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम. ये डायग्नोसिस किसके ऊपर डिपेंड रहता है? पेशेंट क्या बोल रहा है अपने साथ और पेशेंट में हमने क्या क्या देखा है, उसके ऊपर वो नर्सिंग डायग्नोसिस डिपेंड होता है. सो द डेफिनेशन एज पर WHO और एज पर नंदास, a clinical judgment about the individual, family or the community response to actual and potential health life process. The nursing diagnosis provides the basic for selection of nursing interventions to achieve an outcome for which the nurse is accountable. Okay. The normal definition of nursing diagnosis is definition. Nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family or community response to actual and potential health problem.
process. Okay. The definition of nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family or community response to actual and potential health problem or life process. This is the main definition. Now the purpose is क्यों करने चाहिए nursing diagnosis? Purpose to analyze collected data to identify clients normal functional level statement to identify the client's strength and weakness. Formulate a nursing diagnostic weakness. Purposes are to analyze the collected data, जो हम असेसमेंट में डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करना, to identify the client's normal function level statement, to identify the client's strength and weakness, जो पेशेंट अपने पास आया है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है, उसके लिए हम लोग डायग्नोसिस देखते हैं. टू फॉर्मुलेट अ डायग्नोस्टिक वीकनेस, मतलब अलग अलग जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट का वीकनेस क्या है. ओके, सो दीज आर द पर्पजेस. नाउ हम लोग देखेंगे द डिफरेंस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस. डिफरेंस क्या है मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में? मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई अ डिसीज. बट इन नर्सिंग डायग्नोसिस फोकसेस ऑन अनहेल्दी रिस्पॉन्सेस टू हेल्थ एंड इलनेस. ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं? फोकसेस ऑन अनहेल्दी रिस्पॉन्सेस टू हेल्थ एंड इलनेस. देन मेडिकल डायग्नोसिस में डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम फॉर विच द फिजिशियन डायरेक्टेड द प्राइमरी ट्रीटमेंट. पेशेंट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स, पेशेंट्स प्रॉब्लम्स बाय विच अ फिजिशियन डायरेक्ट द प्राइमरी ट्रीटमेंट. फर्स्ट क्या देंगे मेडिकल डायग्नोसिस में? प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे. देन describe a problem treated by a nurses within the scope of independent nursing practices. जैसे कि पेशेंट को फीवर आया है तो मेडिकल डायग्नोसिस में क्या देंगे? फीवर आया है तो पैरासीटामोल देखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे. बट इन नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करेंगे? टैपिड स्पंजिंग करेंगे, कैसे फीवर कम होता है कि या नहीं उसकी कोशिश करेंगे. ओके, देन in medical diagnosis remain the same as long as the disease is present. मेडिकल डायग्नोसिस सेम ही रहता है. इट रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज द डिसीज़ इज़ प्रेजेंट. जब तक डिसीज़ है तब तक ये मेडिकल डायग्नोसिस वही रहेगा. ओके, डेंगू का पेशेंट है, डेंगू रेफ़र किया तो डिस्चार्ज होने तक उसको डेंगू ही बोलेंगे. बट इन मेडिकल डायग्नोसिस many changes from day to day as a patient's response changes. नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या हम जैसे केयर देंगे, डेली चेंजेस है, डेली केयर देते हैं, उसके जो पेशेंट में क्या क्या चेंजेस हो गए, अलग कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, वैसे अपना डायग्नोसिस चेंज होता जाएगा. ठीक है.
Example, the nursing diagnosis for the person of myocardial infarction, जैसे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेशेंट आया, मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब हार्ट अटैक, ओके, वो पेशेंट अपने पास आया है, तो उसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हुआ, उसमें फियर है, अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस है, मतलब हेल्थ के बारे में कुछ तो चेंजेस है, पेन है पेशेंट को, देन नॉलेज डिफिक्ट है, पेशेंट को कुछ भी नॉलेज नहीं है हार्ट अटैक के बारे में, एंड अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, मतलब पेशेंट का जो टिश्यू परफ्यूजन है वो अल्टर्ड है। ये अलग अलग डायग्नोसिस है अपने नर्सिंग डायग्नोसिस में, ओके। पर ये जब भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो मेडिकल डायग्नोसिस उसका हार्ट अटैक ही होता है, ओके, ओनली हार्ट अटैक ही उसको बोला जाता है। बट इन नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या होता है, फियर है, अल्टर मेंटल सेंसरिज्म, ओके, देन पेन है पेशेंट को, नॉलेज डिफिक्ट है, अल्टर इशू टिश्यू परफ्यूजन है, ओके। सो ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस में आएगा, ओके। राइट डाउन the difference between medical diagnosis and nursing diagnosis. Medical and nursing diagnosis. इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई डिसीज। मेडिकल डायग्नोसिस में फर्स्ट आइडेंटिफाई द डिसीज, बट इन नर्सिंग डायग्नोसिस फोकसेस ऑन unhealthy responses to health and illness। मतलब जैसे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन का अटैक का पेशेंट अपने पास आता है तो मेडिकल डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर्स क्या डायग्नोस करते हैं, उसका हार्ट अटैक, एक तो नाम देते हैं उसको हार्ट अटैक, ओके। बट नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं, फोकसेस ऑन अनहेल्दी, पेशेंट डर गया है मन में, तो उसको मालूम नहीं है उसको क्या हुआ है, जो अनएजुकेटेड पेशेंट, वो जो मेडिकल से उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो उसको हार्ट अटैक के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है। पर अभी सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है तो सबको मालूम है हार्ट अटैक मतलब क्या है, सब गूगल पे सर्च करते हैं क्या हो गया है, ओके। बट प्रीवियसली क्या होता था, पेशेंट को मालूम ही नहीं रहता था हार्ट अटैक का मतलब क्या है, खाली हार्ट बंद पड़ जाना इतना उनको मालूम है, ओके। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में अलग अलग फियर्स देखते हैं, पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, वो डिसीज़ के बारे में मेंटल स्टेटस क्या है उसका, और डिसीज़ कंडीशन क्या है, उसको क्या हो रहा है, हार्ट अटैक की वजह से उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, वो बहुत डर गया है, ये सब बाकी का अनहेल्दी कंडीशंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स for which physician directs the primary treatment। एक बार डायग्नोसिस किया, आइडेंटिफाई किया डिसीज, तो क्या करेंगे, उसके बारे में प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे फिजिशियन। बट इन नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब प्रॉब्लम treated by
nurses within the scope of independent nursing practices. इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस, जैसे कि एक बार फिजिशियन क्या होता है, वो ट्रीटमेंट लिख के चले जाते हैं, बट इन नर्सिंग डायग्नोसिस दे डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ट्रीटेड बाय अ नर्सिंग विद इन द स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस। नर्स क्या करेगी, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी, ओके, पेशेंट के साथ डिस्कस करेगी, कम्युनिकेट करेगी, आपको कुछ नहीं हुआ है, अभी हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे ठीक होगा आपका जो दर्द है, ओके। नेक्स्ट, रिमेन द सेम, जो मेडिकल डायग्नोसिस है इट इज रिमेन द सेम एज लॉन्ग एज the disease is present. In nursing diagnosis may change from day to day as the patient response change, बट नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, डे टू डे चेंज होता जाएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब जैसे कि सेम हार्ट अटैक का पेशेंट अपने पास आया है, आज पहले दिन हमने ट्रीटमेंट दी, पेशेंट ठीक है, दूसरे दिन क्या होगा, पेशेंट कंटिन्यू बेड रिडन है, पेशेंट टॉयलेट के लिए जोर नहीं लगा सकता क्योंकि उसको हार्ट में दर्द है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए लैक्सेटिव मेडिसिन देंगे उसको मोशन पास होने के लिए। सो सेकेंड डे का उसका क्या केयर रहेगा, उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, नहीं तो मोशन के लिए कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे। सो हम डे टू डे पेशेंट का जो अलग अलग चेंजेस होता जाएगा उसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब इसका मीनिंग क्या है, हार्ट अटैक। नर्सिंग डायग्नोसिस में एग्जांपल, a person with myocardial infarction leads to fear, altered health maintenance, pain, knowledge defect, and altered tissue perfusion। ये क्या है डिफरेंस बिटवीन मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, दोनों में डिफरेंस बताए गए हैं। समझ में आया मेडिकल डायग्नोसिस क्या है एंड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है।
नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग फोकस किसके ऊपर करते हैं, पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके, और डेली अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस है चेंजिंग होता जाएगा, डायनेमिक है। ओके, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। सो नर्सिंग डायग्नोसिस चेंज होता जाएगा and the medical diagnosis remains same as long as the patient is admitted in the hospital. Next are the types of nursing diagnosis. नर्सिंग डायग्नोसिस के अलग अलग 3 टाइप्स है। The types of nursing diagnosis are actual diagnosis, high risk diagnosis, wellness diagnosis and syndrome diagnosis. Okay, 4 types of nursing diagnosis. First is actual diagnosis. Actual diagnosis मतलब it represents a problem which has many defining characteristics. It is a judgment about the client's response to health problems that is present at the time of nursing assessment. जो एक्चुअल डायग्नोसिस है, जब भी पेशेंट अपने पास आता है तो पेशेंट कुछ कंप्लेंट्स बोलता है, ओके, रिलेटेड टू हिज और हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, तो वो जो कुछ अपने हम लोगों को बताता है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे एब्डोमेन पेन हो रहा है, सो ये सब कंप्लेंट्स है, उसको क्या बोलेंगे, उसके ऊपर हम जो फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। ओके, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस। Types of nursing diagnosis. First type is actual diagnosis. It represents actual nursing diagnosis represent a problem which has many characteristics, many defined characteristics. It is judgment about a client's response to a health problem. Health problem at the time of nursing assessment. जो हम लोगों को पेशेंट बताता है नर्सिंग असेसमेंट के टाइम में। एग्जाम्पल, ineffective breathing pattern related to respiratory
डिसीज। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, जब भी पेशेंट अपने पास अस्थमा पेशेंट आता है तो पेशेंट ब्रेथलेस जब भी रहेगा तो उसका ब्रीथिंग पैटर्न अलग रहता है, उसको साउंड रहेगा, विजिंग साउंड रहेगा। ओके, सो उसको बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। तो हम लोग वहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट इज ब्रेथलेस ड्यू टू सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके, next type is high risk diagnosis. Second type is high risk diagnosis. High risk diagnosis describes a potential problem जो प्रीवियसली क्रॉनिक प्रॉब्लम है पेशेंट लेके आ रहा है अपने पास, डिस्क्राइब अ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। इट मीन्स द क्लाइंट्स इज प्रोन टू डेवलप अ प्रॉब्लम दैट अदर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है वो तो है, ओके, तो उससे भी अलग प्रॉब्लम पेशेंट को चालू हो गया है। इट लेफ्ट इन अ सिमिलर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, एन ओबेस क्लाइंट अंडरगॉन अ हिप रिप्लेसमेंट। जब भी एक ओवरवेट मतलब बहुत ज़्यादा वेट वाला पेशेंट सर्जरी में जाता है, कौन सी सर्जरी? हिप रिप्लेसमेंट। ओके, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अंडर जाता है तो क्या होता है, उसको अलग प्रॉब्लम भी अराइज हो सकते हैं। पेशेंट की सर्जरी तो होगी है, ओके, हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, बट उसको अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। उसको ओवर वेट है, ज़्यादा वेट है, ओबेज है पेशेंट, तो पेशेंट को कंटिन्यू बेड रिडन रह के क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। ओके, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हाई रिस्क डायग्नोसिस। क्या बोलेंगे इसको? हाई रिस्क डायग्नोसिस। पेशेंट एक प्रॉब्लम लेके अपने पास आया है, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद पेशेंट को दूसरा एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ओके, और हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट कंटिन्यू बेड पे ऐसे ही सोता रहेगा, क्योंकि उसको हिप रिप्लेसमेंट हो गया है तो वो मूवमेंट्स नहीं कर सकता है हाथ पैर का। तो क्या होगा, उसको पीछे बेड सोर हो सकता है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। These are the problems arises. So this is called a high risk diagnosis. The risk impaired the skin integrity. Presently the client does not have a pressure ulcer. अभी तो प्रेशर अल्सर नहीं है, but if remain bedridden for long time without a changing position, he is prone to get high risk to get develop a pressure ulcer. ओके, बट हम लोगों ने पेशेंट का पोजीशन नहीं चेंज किया तो पेशेंट प्रोन टू गेट बेड सोर। ओके, so this is called a high risk diagnosis or high risk infection. Write down high risk diagnosis. Describe a potential problems. It means client is prone to develop problem than other problem. Example, obese patient is undergone hip replacement surgery as a patient is
इमोबाइल मतलब मिलजुल नहीं सकता। Immediate develop pressure sore और प्रेशर अल्सर। थर्ड इज वेलनेस डायग्नोसिस। वेलनेस डायग्नोसिस का मतलब a clinical judgment about the individual, family, community in transition from the specific level of wellness to a higher level of wellness. For example, birth of newborn twins। मतलब जब भी पेशेंट अपने पास आता है तभी एक अलग कंडीशन लेके आता है, बट इट इज़ वेल, a specific wellness of a higher level of wellness means the example is birth of newborn twins. The wellness nursing diagnosis is potential for growth related to unexpected birth of twins। मतलब unexpected growth birth हुई है twins की। ओके, so that is called a wellness diagnosis। Wellness diagnosis means is a clinical judgment about individual, family, community in transition from a specific level of wellness to higher level of wellness। Example, unexpected birth of twins। Fourth is syndrome diagnosis। Cluster of actual and high risk diagnosis that are predicted to be present because of certain event or situation। सिंड्रोम डायग्नोसिस मतलब क्लस्टर ऑफ एक्चुअल डायग्नोसिस एंड हाई रिस्क डायग्नोसिस दैट आर प्रेडिक्टेड टू बी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट ऑफ सिचुएशन। जब भी पेशेंट आता है तभी पेशेंट के हम लोग कंडीशन देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, बट पेशेंट को क्या हो गया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेप ट्रोमा सिंड्रोम। एग्जांपल इज रेप ट्रोमा सिंड्रोम।
जैसे कि रेप होने के बाद वो क्लाइंट पे अलग अलग ट्रोमा होता है, जैसे कि मेंटली ट्रोमा में जाता है, मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है, ओके। और मेंटल जो हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ syndrome diagnosis. These four are the types of nursing diagnosis. Okay, medical diagnosis, high risk diagnosis, wellness diagnosis, and syndrome diagnosis.